A very warm welcome to my channel. This is Kanchan Gupta and my channel is UGC Education Paper 2. So today we are going to study difference between phenomenology, narrative, case study, grounded theory and discourse analysis. First I have to say individually I have covered with all of the topic in detail with the MCQs, but now there is a need to make a difference between all of these researches because हम क्या करते हैं, हम पढ़ तो लेते हैं बट उसमें जब क्वेश्चंस आते हैं तो वी गेट कंफ्यूज कि कौन सा जो है रिसर्च टाइप आएगा. सो नाउ इट विल आफ्टर दिस लेक्चर इट विल डेफिनेटली क्लियर यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ईच एंड एवरी रिसर्च टॉपिक, राइट? सो हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट. Yes, the first is the definitions. Let's read the definition first. So first we start with the ethnography, right? It focus करता है on sociology of the meaning through close field observation. That means observation होता है किसका? सोशियो कल्चर का. इसका सोशियो कल्चरल फिनोमिना का यहाँ पे क्लोज ऑब्जर्वेशन होता है जिसे टिपिकली फोकस कहते हैं कम्युनिटी, और वी कैन से इट इज़ अ स्टडी ऑफ कल्चर, राइट? नाउ फिनोमिनोलॉजी इज डिस्क्राइब यू द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपीरियंसेस, structure of experiences as they present themselves to consciousness. जो उनके consciousness में present है वो structure of experience without recourse to theory, deduction or assumptions from other discipline. So phenomenology is the experience, right? Grounded theory is for making the theory. Theories developed होती है inductively from the corpus of data. जो भी data इसमें collect होता है उसके through हम inductively क्या theory करते हैं? Theory develop करते हैं. Acquired by the participant observer. Data are subject to constant comparison. Yes, this is the key word. Here we do the constant comparison. Yes, this is the key word. Now, until a point of theoretical saturation is achieved, उस theory को हम तब तक comparison, constantly comparison करते हैं जब तक हम उसके saturation point तक नहीं पहुंच जाते. अगर if you want to know what is a saturation point, please go through with my video that is on grounded theory. उसमें मैंने आपको सब चीज़ें डिटेल में बताई है, right? Discourse analysis, the study of big D languages used beyond the boundaries of a sentence or interrelationships between the languages and the society, or small d, that means the interactive or dialogic properties of everyday communication. Discourse analysis होता है language की analysis, right? Action research a reflective process है. Action research is a mostly किस लिए होता है? Immediate problem को solve करने के लिए ये research की जाती है. Yes, immediate problem को solve करने के लिए. So it is a progressive problem है solving lead by individuals working with others in a team or as a part of community of practice to improve the way they address the issue. फिर जो भी issues आता है उसके immediate के solution के लिए we will do action research. Now moving on to its differences. हम एक एक का difference करेंगे, right? For more clarity. So here we have the narrative research. First आता है introduction, problem questions. Narrative research में कोई problem होती है, कोई research होती है. Same इसमें भी phenomenology same with all of them. इसमें एक problem होती है. Case study, entry minute. इसमें भी same एक question होता है, एक problem होती है, right? Now research procedure, a narrative significance जो है of individual का data collection, analysis, ये सब होता है. On the other hand, report of stories. Yes, मैं इसको highlight कर देती हूँ for more. Yes, report of stories का report होता है. Individual theorize about their life, उनकी अपनी जो life है उसके बारे में narrate करते हैं. पैटर्न ऑफ मीनिंग आइडेंटिफाइड, जो भी पैटर्न है जिस तरह से वो इवेंट हुआ है उसके प्रोसेसेस को, उसकी इफेनिस को, थीम्स को डिस्क्राइब किया जाता है. एक एग्जांपल है जैसे डेंजिल ने
जो है अडॉप्ट किया था 1989 में। नाउ द फिनोमिनोलॉजी इज़ बेसिकली रिसर्च प्रोसीजर। क्या रहता है इसमें? एक फिनोमिनोलॉजी है, जो है इसमें फिलोसॉफिकल एजम्पशंस होती हैं, डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन एंड आउटकम, राइट। इट्स सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट होता है, फिनोमिना के बारे में बताना, वो फिनोमिना कैसे हुआ है, मीनिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट का मीनिंग बताना। थीम्स ऑफ मीनिंग, थीम्स ऑफ मीनिंग मतलब उनके जो मीनिंग निकलता है उसके बारे में बताना। एन एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ फिनोमिना, सो इट इज़ अडेप्टेड बाय द मुस्ताकिस 1995 एंड दिस इज टेंसन 1989। नाउ मूविंग ऑन टू द ग्राउंडेड थ्योरी, इसमें भी क्या है, प्रोसीजर है, राइट। रिसर्च प्रोसीजर कौन सा है ग्राउंडेड थ्योरी में? डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। इसमें ओपन कोडिंग, एक्साइल, सिलेक्टिव कोडिंग एंड देन थ्योरेटिकल प्रपोजिशन होता है। दिस इज अ वेरी मेन की पॉइंट है इसका, कि यहाँ पर क्या होता है, एक्साइल कोडिंग, फील्ड में जाके जो कोडिंग की जा रही है उसके बाद उसको कैटेगराइज किया जाता है, उसके बाद उसमें से सेलेक्टिव जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया जाता है, एंड देन उसके बाद आपको ये चीज़ इसमें याद रखनी है, वी मेड अ कोड एंड देन वी मेक देम कैटेगरी, हम उसकी कैटेगरी बनाते हैं, उस कैटेगरी से हम कॉन्सेप्ट को क्रिएट करते हैं, उस कॉन्सेप्ट से हम थ्योरी की तरफ जाते हैं। तो दिस इज़ अ train and it is a discussion. Grounded theory is a discussion of a theory and contrast with the extract and literature, and it is adopted by the Strauss and Corbin 1990. So this is a very key point. ये किसने अडॉप्ट किया था? Yes. एथनोग्राफी, इसमें रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है? डेटा कलेक्शन, सेम है हर एक में, डेटा कलेक्शन इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कल्चर, कल्चर का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। किसी के कल्चर में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनकी लैंग्वेज के बारे में, कल्चर पैटर्न के बारे में, उनके फेस्टिवल्स के बारे में, उनके जो है प्रीडिसेसर्स के बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये एथनोग्राफी रिसर्च की जाती है। एनालिसिस ऑफ कल्चरल थीम का, जो भी उनके कल्चरल थीम्स है उसका एनालिसिस होता है। गेट माई पॉइंट। एंड देन इंटरप्रिटेशन होता है, लेसन लर्न एंड क्वेश्चन रेज किया जाता है। दिस इज अडेप्टेड बाय द वॉलकॉट 1994 में वॉलकॉट ने ये एथनोग्राफी अडॉप्ट की थी, अडेप्ट की थी। एंड देन केस स्टडी, केस स्टडी इज ऑल्सो वन ऑफ द रिसर्च टाइप, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस का डिस्क्रिप्शन होता है, इसमें इश्यूज़ को डेवलप किया जाता है, डिटेल अबाउट द सेलेक्टेड इश्यूज़ जो भी हैं, और उसका जो अडेप्शन है, अडेप्शन इज टेकन बाय द स्टेक, राइट। चलिए मूविंग ऑन टू द मोर क्लैरिटी। फर्स्ट आता है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी इज द इमर्जन इन नेचुरल सेटिंग्स, नेचुरल सेटिंग में जाके इमर्ज हो जाना, राइट, टू गेन इनसाइडर एक्सपीरियंस, जैसे सर्विस इवैल्यूएशन या अपटेक ऑफ मेडिकेशन। जैसे अगर आपको जानना है मेडिकेशन से क्या होता है, तो आप शोर में बैठ के मेडिटेशन का कोई फ़ायदा नहीं, तो यू हैव टू गो टू द नेचुरल सेटिंग, दैट मीन यू हैव टू गो इन बिटवीन द नेचर टू गेट द मेडिटेशन, राइट। सो आपको इमर्ज होना है नेचुरल सेटिंग्स में इन एथनोग्राफी। ऑन द अदर हैंड ग्राउंडेड थ्योरी जो है, इट्स जनरेशन ऑफ थ्योरी, यानी कि जनरेट करना होता है थ्योरी फ्रॉम द एम्पिरिकल डेटा। एग्जाम्पल है स्टिग्मा इन मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ में स्टिग्मा का पता लगाना, या बिलीफ या परसेप्शंस ऑफ मेंटल इन डिफरेंट एथिक ग्रुप में, ये ग्राउंडेड थ्योरी है जहाँ पर हम थ्योरी को जनरेट करते हैं। ऑन द अदर हैंड इंटरप्रिटेटिव फिनोमिनोलॉजी एनालिसिस, एक होता है इंटरप्रिटेटिव, एक होता है ट्रांसडेंटल, यस, ट्रांसडेंटल फिनोमिनोलॉजिकल एनालिसिस। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंटरप्रिटेटिव की। दोनों जो हैं इट्स अ टाइप ऑफ फिनोमिनोलॉजी, और अगर आपको दोनों की क्लैरिटी चाहिए तो गो थ्रू माय वीडियो। टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल इन डेप्थ एक्सपीरियंस, एक इंडिविजुअल को इन डेप्थ एक्सपीरियंस करना, लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ कॉपिंग विद डेमेटिया, राइट। उसके बाद है डिस्कोर्स यानी कि लैंग्वेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जब भी आप डिस्कोर्स एनालिसिस को देखेंगे तो आप एक लैंग्वेज, उसके साथ एक वर्ड को, एक निमोनिक्स को जोड़ दीजिए। निमोनिक्स से क्या होता है, आपको क्लैरिटी हो जाती है कि अगर ये वर्ड आया है तो दैट मीन्स लैंग्वेज। कई बार होता है एक्सप्लेनेशन को काफ़ी जो है दिमाग में नहीं रख पाते हैं, कई डेफिनेशन या कई एक्सप्लेनेशन ऐसी होती है, लेकिन एक निमोनिक्स बनाने से क्या होता है, वो चीज़ आपको याद रहती है। जैसे मैंने बनाया है डिस्कोर्स एनालिसिस दैट इज रिलेटेड विद द लैंग्वेज।
To capture the nuances to text or public discourse. Example, understanding political theory, social change या cultural context कि यहाँ होने वाले जो चेंजेस हैं उनका पता लगाना. कंटेंट एनालिसिस होता है टू कैप्चर द मीनिंग एट डिस्क्रिप्टिव लेवल पे, उसके मतलब कंटेंट का एनालिसिस करना और उसके मीनिंग उसका पता लगाना. वाई डू केयरर्स एक्सेस सर्विस फॉर देयर रिलेटिव्स विद एनोर्सिया, कि वो कैसे जो है और क्यों एक्सेस करते हैं. फ्रेमवर्क एनालिसिस होता है. फ्रेमवर्क यानी कि मेनली यूज्ड और प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेथड है इन हेल्थ सर्विसेज रिसर्च. एग्जाम्पल है व्हाट आर द ट्रेनिंग नीड्स फॉर प्राइमरी केयर स्टाफ, क्या ज़रूरत है उसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, फ्रेमवर्क एनालिसिस होता है. नाउ व्हाट आर द सैम्पलिंग मेथड्स, सैम्पल को कलेक्ट करने के लिए कौन से मेथड्स होते हैं. एथनोग्राफी में ऑब्जर्वेशन होती है, बिकॉज आप नेचर में जाके उनके कल्चर उनके फेस्टिवल्स को ऑब्जर्व करते हैं. ऑन द अदर हैंड ग्राउंडेड, बिकॉज ग्राउंडेड थ्योरी इज अ जनरेशन ऑफ थ्योरी, तो रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव्स का होना बहुत ज़रूरी है. एंड स्टे ट्रू टू द रिसर्च क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस आप पुट कर रहे हैं, रिसर्च प्रॉब्लम बना रहे हैं, स्टिक टू इट. अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर हो सकता है, थियोरेटिकल सैम्पलिंग कैन बी मेड. ऑन द इंटरप्रिटेटिव फिनोमिनोलॉजी, होमोजीनियस सैम्पल होता है, स्टे ट्रू टू द पार्टिसिपेंट स्टोरी, कि जो भी वो अपनी स्टोरी को इंटरप्रेट कर रहा है उसी स्टोरी को एज इट इज़ जो है प्रेजेंट करना. अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर होता है एंड पर्पसफुल सैम्पलिंग होती है, राइट. पर्पसफुल सैम्पलिंग होती है. एंड देन ऑन द अदर हैंड डिस्कोर्स एनालिसिस में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो स्पीचेस हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, मास मीडिया से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, पर्पसफुल थियोरेटिकल सैम्पलिंग इज ऑल्सो देयर. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कहाँ से सोर्स आप लेते हैं, न्यूज़पेपर्स, जो स्पीचेस हैं या मास मीडिया है वहाँ से. कंटेंट एनालिसिस हम न्यूज़पेपर, मास मीडिया, और ये होता है कन्वीनियंट सैम्पलिंग के लिए, कि जो भी आपके पास कन्वीनियंटली आपको सैम्पल मिल रहा है आप उसे यूज़ कर रहे हो. फ्रेमवर्क एनालिसिस इज द इंटरव्यूज विद द सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर होता है. सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर का फ्रेम बनाते हो और ऑन द स्पॉट जो है कोई अगर आपको क्वेश्चन जो है पूछना है या क्वेश्चन आपको लगता है कि पूछना चाहिए, वो आप यूज़ कर लेते हो. नाउ एनालिसिस. यस, द एनालिसिस जो है इज, यस, एनालिसिस इज अ डेटा ड्रिवन बट नो फिक्स्ड जो है फिक्स्ड कमिटमेंट टू डेवलपिंग न्यू थ्योरी. इसमें होता है डेटा निकाला जाता है लेकिन कमिटमेंट नहीं किया जाता है कि वी जनरेट अ न्यू थ्योरी. इट्स अ जनरल व्यू कि आप उनके फेस्टिवल वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन लेने या उनको एक कवर अप करने गए हैं, ठीक है. बट ऐसा नहीं है कि आप कमिट करें कि यहाँ पे एक जनरेशन होगा ही होगा. वो आप कहाँ करते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी में, बिकॉज इट्स अ डेटा ड्रिवन एंड कॉन्स्टेंट कंपैरिजन एंड इटरेटिव अप्रोच विच ग्राउंडेड थ्योरी. तो यहाँ ग्राउंडेड थ्योरी में क्या है, इट्स अ वेरी डेटा ड्रिवन. एक मिनट, पेन लॉस हो जाता है. Just a second. यस, ठीक है. एंड देन इंटरप्रेटिव में होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड इंटरप्रेटेटिव थीम्स का होना बहुत ज़रूरी है. जो एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं, एक्टिवली एंगेज होना रिसर्चर का बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमें फिनोमिना को जो है फिनोमिना को क्रिएट करना है. डिस्कोर्स इज़ अ डिटेल्ड एंड थॉरली एनालिसिस स्टडी होता है, थॉरली हम एनालाइज करते हैं. एंड डिस्कोर्स स्पीचेस हैं, कन्वर्सेशंस होते हैं विद रिटन टेक्स्ट में, राइट. एंड द कंटेंट, जब हम किसी कंटेंट को एनालाइज करते हैं तो डिडक्टिव अप्रोच होती है, जिसमें हम एडवांस में ही जो है चीज़ों को कैटेगराइज कर लेते हैं. एंड इट इन्वॉल्व्स द काउंटिंग ऑफ फ्रीक्वेंसीज, दैट इज़ नंबर ऑफ टाइम्स अ टॉपिक अराइज. और हम उसमें एनालिसिस करते हैं कि कितनी बारी टॉपिक रिवाइज हुआ है या कितनी बारी उस पर रिसर्च हुई है. ऑन द अदर हैंड फ्रेमवर्क में हम एनालिसिस कैसे करते हैं, थ्योरी ड्रिवन होता है, मतलब इसमें थ्योरी ली जाती है, उनका एनालिसिस होता है. इट इज़ अ डिडक्टिव अप्रोच है, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन ऑन द इंटरव्यू टॉपिक गाइड. सो यहाँ पे जो है इट स्टार्ट विद द इंटरव्यू. एंड रिसर्चर में जो आर्स पोजीशन होती है, मतलब आर की जो स्किल है वहाँ पे न्यूट्रल और पोजीशन वाइटल होती है.
आर की पोजीशन क्या होती है यहाँ पे, बायस्ड होती है, एंड आर्स पोजीशन इज द पैरामाउंट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्सिटिविटी होती है, हाई लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन और एब्स्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड। आर्स पोजीशन होती है न्यूट्रल, इंटररेटर रिलायबिलिटी एंड ऑफन कैलकुलेटिव होती है, एंड यहाँ पे न्यूट्रल जो पोजीशन है ऑफ द रिसर्चर की लिमिटेड और इंटरप्रिटेशन होती है। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, एंड बिफोर going, please subscribe my channel, right, for more coming up video. So thank you so much guys. Bye bye, take care.